Okay, so in last class we were discussing about the impacts of unemployment यानी क्या प्रभाव होता है बेरोजगारी का बेकारी का. So we had seen some points, that is social impact we had seen, यानी समाज में किस तरह प्रभाव पड़ता है, समाज पर क्या असर होता है. So we had seen that first point is wastage of labor force resource. That means due to unemployment our labor force gets wasted. We have a capacity to do work but we are not able to do that work. So it is a wastage of labor force, and also it leads to exploitation of the labor force that I had told you. They are forced to work at very low wages, and they many times they have to do the work which they do not want, but they have to do it. Then second point was rise of inferiority complex. That also I had explained, that when a person is unemployed or he gets unemployed, he feels inferior to others who are employed. He feels that he is a burden on society, and thus he is not able to do any productive work. Next point is escalation in social evils. So we had understood that due to unemployment the youth are uh, they are sometimes forced, compelled, or sometimes they develop some wrong tendency and involve in some uh, wrong doings, like wrong actions like theft, robbery, snatching, thuggy, dowry, etc. So we can say that whenever there is unemployment in any society, the crimes increase. Crimes increase like theft, robbery, snatching, burglary, thuggy, dowry, etc. Next point was beginning of migration tendency. That means that in any area when there is a high rate of unemployment, people are not able to get any work, so they develop a tendency to leave that area and migrate to some other place in search of work. So unemployment also leads to migration. In short, we can say unemployment leads to migration. You know that so many people, they leave the villages to come to cities. Why do they come to cities? In search of employment and also better living facilities, the facilities. So people migrate from rural areas to urban areas or villages to cities. Similarly, many people, they migrate from one state to another state or a faraway place, or even to another countries. We have seen in India that people in general, in any state, people, they migrate from village to the cities. Also there are some metropolitan towns, developed industrial towns, where people come from all the corners of the country, and they come in search of good work, better paid work, where they can get better paid, they can get good wages or salary.
Cities like New Delhi, Bombay, Nagpur, Surat, Chennai, Hyderabad, Bangalore. So people from all over India, that is our country, all over country, they migrate to these big cities in search of good work or good jobs. Now, due to this migration, the people, they get detached from their homes, from their family, from their society, from their culture, and there is you can write it, a feeling of alienation, feeling of alienation, alien, a l I e n a t I o n, alienation, a l I e n a t I o n, यस, एलियनेशन। तो एलियन का मतलब होता है कोई बाहरी, और एलियनेशन का मतलब होता है बाहरी जैसा महसूस करना, बाहरी जैसा, बाहरी आदमी जैसा। हाँ, यस। सो एक्चुअली एक तो मतलब हुआ बाहरी या फिर दूसरों से अलग। ओके, तो एलियनेशन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को अपने आसपास के लोगों से अलग समझता है, उनसे जुड़ नहीं पाता है, और वो अकेलापन का शिकार हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग उसके जैसे बोलने वाले नहीं होते हैं, उसके जैसे बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उसके जहाँ का वो नेटिव रहने वाला है वहाँ उस तरफ के लोग से नहीं, अलग कहीं अलग जगह से होते हैं। तो इन कारणों से जो है वो उनसे एक कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, और वो अकेलापन महसूस करता है, और ये अकेलापन काफ़ी परेशान करता है व्यक्ति को। तो ड्यू टू दिस माइग्रेशन, people also have to suffer from alienation, and also due to migration they have to work on unreasonable wages। उन्हें कई बार काम की मजबूरी के चलते या तो बहुत कम पैसों पर भी काम करना पड़ जाता है, या ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जिसको वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहते हैं, बट दे आर फोर्स्ड बिकॉज नाउ दे हैव नो ऑप्शन, दे हैव ऑल्सो लेफ्ट देयर होम एंड दे हैव कम हेयर वेयर देर इज नो वर्क, so they have to do the work which they do not like, or at very low wages. So migration does not guarantee permanent employment। माइग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप दिल्ली चले जाएंगे तो आपको एक परमानेंट जॉब वहां लग ही जाएगी, बॉम्बे चले जाएंगे तो वहां एक परमानेंट जॉब लग ही जाएगी। So these were some social impacts, that means the people, they feel these things as a society. Now next is economic impact, that means the effects of unemployment relating to their livelihood and their uh, earning, their income and wealth. First is decrease in per capita income, decrease in per capita income। Now you understand what is per capita income? Per capita is income is the average income per person। Yes, per capita means per person, so that means the average income of an individual। So the point is decrease in per capita income, that means there is a decrease in the average income of an individual। The per capita income becomes lower
during the period of inoccupation that shows the economic condition of the person. भाई नेचुरल बात है कि जब कोई व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, उसके पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं होता है, कोई रोजगार नहीं होता है, तो हाउ विल ही गेट एन इनकम? विदाउट वर्क हाउ कैन यू गेट इनकम? फिर दूसरा रास्ता है कि जाइए कुछ चोरी कीजिए, डकैती कीजिए, दैट इज डिफरेंट थिंग. But otherwise, if you are not working, then how will you get salary or income? So definitely when a person is unemployed, his income is reduced or almost nothing. So definitely that is what it is saying, decrease in per capita income. Second point is lower standard of living. Remember that we are studying the economic impact. So definitely when a person, he is not working, he is not getting work, so he is not working, and if he is not working, he is not have any income. So if he does not have any income, then how will he purchase different things that he needs? He will have difficulty in purchasing, in arranging for things that he needs for livelihood. So definitely his standard of living will fall down. He will not be able to afford the same quality as when he was when he was employed. So to continue his livelihood during unemployment, he has to lower his standard of living. पहले अगर जो है बासमती चावल खाता था और व्यक्ति बेरोजगार हो गया, तो उसको क्या है, साधारण चावल से काम करना पड़ेगा, उसी को खाना पड़ेगा, क्योंकि उतना महंगा अब खा नहीं सकता है, रोजगार नहीं. पहले अगर खूब 3 टाइम खाना खाता था, तो हो सकता है अब उसको 2 ही टाइम खाना खाना पड़ेगा. पहले जो है ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करता था, तो अब उसे जो है हो सकता है सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़े, बिकॉज ही डजेंट हैव दैट मच मनी, बिकॉज ही डजेंट वर्क. So unemployment leads to reduction in standard of living of any person, because if he has get in unemployed. अब देखिए अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो खूब सूट पहन के घूमते रहते हैं, और कल को प्रधानमंत्री नहीं रहे तो हो सकता है प्रेस किया हुआ कुर्ता पहनना भी मुश्किल हो जाएगा. तो डेफिनेटली इट हैपेंस टू द पॉलिटिशियंस. कल तक जो है पूरा लाव लश्कर के साथ गाड़ियों के साथ घूमते रहते हैं, चुनाव हार जाते हैं, तो फिर जो है गाड़ी अपनी भी चलानी मुश्किल हो जाती है. सो इट हैपेंस टू एवरीवन. सी राइट नाउ देयर वाज बिग बिजनेस पीपल लाइक बिरला, अंबानी, दे हैड फेस्ड आफ्टर कोरोना. अभी देखिए अनिल अंबानी की हालत खराब है, कर्ज में इतना डूबा हुआ है कि गायब ही हो गया बिजनेस सीन से. जो he has taken so much loan and he is suffering. Similarly, Kumar Mangalam Birla. So the Birla group also had taken a lot of loan, and he was at one time, there was some rumors that he would be have to sell some companies to pay back those loans. और कुछ लोगों का तो आप जान ही रहे हैं कि देश ही छोड़ के भाग गए हैं लोन के चक्कर में. तो ही इज लिविंग अब्रॉड इन यूके. मुकदमा की बात है कि द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग हिम, बट देर आर सम लीगल प्रोसीजर्स, तो उसके बिना नहीं हो सकता. अब जैसे वो यूके में है, तो यूके में है, जैसे इंग्लैंड में है, तो अब इंग्लैंड के लॉज तो अलग है. वहाँ जब तक वो कोई आदमी वहाँ क्राइम नहीं करता है, तब तक उसको किसी जगह दूसरे सरकार को भेजा नहीं जा सकता है.
तो जब तक वहां रह रहा है और वहां के कानून नहीं तोड़ा है, वहां के कोई क्राइम नहीं किया है, तो ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। तो इसीलिए लोग देश छोड़ के चले जाते हैं कि वहां जाएंगे तो वहां आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट्स के बीच में बातचीत हो रही है, इसके लिए एग्रीमेंट वगैरह बन रहा है कि उनको लाया जाए, प्रोसेस है, चल रहा है। Anyway, so I was talking that it happens that due to unemployment, अब आप कहेंगे कि सर बिरला बेरोजगार थोड़े हो गया, अंबानी बेरोजगार थोड़े हो गया। देखिए, बेरोजगारी नहीं, बट द थिंग इज दैट दे सफर्ड लॉसेस ड्यूरिंग कोरोना, and also they had taken a lot of loan, many people, so they did not get any orders from customers, their demand was reduced, और जब डिमांड नहीं है, सामान बिकेगा नहीं, तो फिर पैसे कहां से आएंगे? तो डेफिनेटली दे विल गो इन लॉस। सो दैट इज व्हाट हैपेंड। उनको जब आपके काम के लिए डिमांड नहीं है, मतलब आप बेरोजगार हो गए हैं। अब एक मोची बैठा हुआ है रोड पर जूता ठीक करने के लिए, सिलने के लिए, और उसके पास कोई जा ही नहीं रहा जूता सिलवाने, तो क्या है, वो एक तरह से बेरोजगार ही है। जब तक उसको कोई जाता नहीं है रिपेयर कराने के लिए, तब तक तो वो बेरोजगार है। तो जब तक हम किसी का सर्विस नहीं यूज करते हैं, सो ही इज अनएम्प्लॉयड। अब एक डॉक्टर है, खाली क्लिनिक खोल लेने से वो रोजगार नहीं ना हो गया उसका, जब तक लोग आते नहीं है उसको दिखाने। अब कल तक बहुत भीड़ थी डॉक्टर का, और आज कुछ हो गया तो फिर कोई पहुंच ही नहीं रहा डॉक्टर के यहाँ, तो खाली बैठ के क्लिनिक में क्या करेगा? विल ही हैव एनी इनकम फ्रॉम दैट? नो। So that same thing happened to Ambani, Birla and many other people. Their businesses suffered losses, and also there was no demand for their service. So in a sense they become unemployed. So natural their standard of living will fall. So unemployment also leads to lower standard of living. कल तक जो है 5 स्टार होटल में चाय वाय पीते थे, तो फिर उसको जो है सिंपल 1 स्टार होटल में चाय पीना पड़ेगा अगले दिन से, या कहीं भी बैठ के चाय पीना पड़ेगा। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट इज एप्रीहेंशन ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन। थर्ड पॉइंट इज एप्रीहेंशन ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन। एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? डर, चिंता। तो डिप्रेशन का मतलब होता है मंदी। डिप्रेशन का, इकोनॉमिक डिप्रेशन खास करके जब कहेंगे तो उसे हम कहते हैं आर्थिक मंदी, यानी कि स्लो हो जाना बिजनेस का, बिजनेस स्टॉप हो जाना। तो यहां कहा जा रहा है, देखिए, कि एप्रीहेंशन ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी कि ऐसा डर होता है, ऐसी चिंता या संभावना होती है कि आर्थिक मंदी आ जाएगी। अब नेचुरल है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लोगों को कोई काम नहीं मिलेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जब लोग काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन होगा कैसे? और प्रोडक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली है कि स्लो डाउन हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो इस तरह इस बात की चिंता होती है लोगों को कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाएगा, जैसे कि आज अमेरिका में हो रहा है, बहुत से देशों में, यूरोप के हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है। हाँ। The harmful impact of inoccupation affects the complete development of any economic system. तो कहा जा रहा है कि बेरोजगारी का जो एक नुकसानदेह प्रभाव होता है वो है कि किसी भी अर्थव्यवस्था का ये जो है
पूरे विकास को ये प्रभावित, यानी कि अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट, इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। भाई नेचुरल बात है, देखिए कहीं भी है, अगर लोगों को काम मिल रहा है बढ़िया से, जितना ज़्यादा लोग काम करेंगे तो उतना ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जितना भी लोग काम करेंगे तो उस हिसाब से वो अपने पैसे जो उनको इनकम होगी उसको इन्वेस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस चलेगा तो उस जगह का डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी का। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, इनऑक्यूपेशन हो जाए, लोगों के पास काम नहीं रहे, बेरोजगार हो जाए, तो क्या हो जाएगा? तो वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, पिछड़ा हुआ रह जाएगा। Now, an increase in unemployment is indicator of depressed economic system। तो सीधा सीधा कह रहा है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है, तो ये इट इज इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये अपने आप में एक इंडिकेटर है, ये शो करता है कि जो वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम है वो डिप्रेस्ड हो गया है, यानी स्लो डाउन हो गया है, जो मंदी आ गई है वहाँ। तो किसी भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना इस बात का इंडिकेटर है, सिग्नल है कि वहाँ इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ है, आर्थिक मंदी आई हुई है। This is responsible for the wastage of resources that can be suitably employed in other situations। तो इससे क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास संसाधन हैं, उनका वेस्टेज होता है, वो बर्बाद होते हैं, जो कि कहीं और दूसरे जगह अच्छे से उसका इस्तेमाल हो सकता था। देखिए जैसे अभी का भारत को समझिए, लगभग यही हाल है। अभी हमारा देश है, और इसके लिए भी मैं बताऊं आपको, लोग नहीं जानते हैं। लोग को तो देखिए देखिए पॉलिटिशियन का काम होता है ठगना, क्योंकि पॉलिटिक्स है ही ठगने की कला। ये पॉलिटिक्स में लिखा गया है, डेफिनेशन ही है पॉलिटिक्स का कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, कि क्या हो सकता है। और पॉलिटिशियन का काम होता है कि उसे अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करना है और उसका वोट ले लेना है, बस। वोट ले लिया, उसका काम खत्म, अब तो उसकी सरकार बन गई। अब देखिए उसके लिए वो जैसे करे, तो क्योंकि ये तो देखिए, ये तो एक जैसे एक तरह से सौदेबाजी है। आप मार्केट जाते हैं सामान लेने, तो ये आप पर और बेचने वाले पर डिपेंड करता है कि आप कितने में कैसा सामान लेके आते हैं। क्या आप सही दाम पे अच्छा सामान लेके आते हैं, या ज़्यादा कीमत पर अच्छा सामान लेके आते हैं, या ज़्यादा कीमत पर डुप्लीकेट सामान लेके आते हैं, ठीक है, या कीमत भी ज़्यादा देते हैं और सामान भी डुप्लीकेट ले लेते हैं। तो ये तो आप पर और बेचने वाले पर डिपेंड करता है कि आपस में आप किस तरह से डील करते हैं, आप कितनी समझदारी से उससे बार्गेनिंग करते हैं या उससे सही सामान जांच के लेते हैं। तो वही हाल है पॉलिटिक्स में, ये लोगों और नेताओं के बीच में है कि आप कैसे जो है किसको चुनते हैं। आप किसी की बात में प्रभावित आके आप गलत आदमी को वोट दे देते हैं, कि बिना जांच किए जो है आप वोट नहीं देते हैं, या क्या करते हैं, ठीक है। ये वोट देने वाले और वोट लेने वाले के बीच का बात है भाई। वो तो अपना उसका काम है 10 तरह का बात करके किसी तरह आपको प्रभावित कर ले, खुश कर ले कि आपका वोट मिल जाए उसको। तो
अब यहाँ कहा जा रहा है कि भाई ये तो उसका ड्यूटी ही यही है ठगना, कि कैसे लोगों का वोट लेना है, क्योंकि उसका तो है गोल कि हमको सरकार बनाना है या जीतना है चुनाव, जो भी उसके लिए जो हथकंडा अपनाना पड़े। अब ये पब्लिक का है कि भाई आप सजग क्यों नहीं, आप सतर्क क्यों नहीं है? वाई आर यू नॉट अलर्ट, वाई आर यू गेटिंग चीटेड, वाई आर यू गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट। अभी देखिए मैं बताऊं आपको, देखिए बड़ी ही अभी मेरे दिमाग में आई, राइट नाउ। देश में हमारे जो आया इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये लाया हुआ भाजपा का ही है, ठीक है, ये भाजपा ही का लाया हुआ है और भाजपा ही अब भुगत भी रही है, क्योंकि ये तो कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने कई सारे उस समय जो है ये बड़े बड़े काम किए थे, जैसे उस समय स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी, कोल के ब्लॉक्स जो है कोल के माइनिंग के लिए एलोकेट किए गए थे, बहुत सारे ऑर्डर दिए गए थे, डेवलपमेंट अच्छा चल रहा था कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस के समय में। खाली थोड़ा सा ये था कि हाँ थोड़ा करप्शन भी हो रहा था, ठीक है, लोग जो है एक का दो पैसा बना रहे थे, और वो होता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता, ये भी सच्चाई है। अर्थशास्त्र में ही कौटिल्य ने लिखा है कि मछली अगर पानी में तैर रही है तो वो कब पानी पी ले इसका कोई बता नहीं सकता है। समझ रहे हैं बात? मछली अगर पानी में तैर रही है और पी भी रही है, मछली के मुंह में पानी जाता भी है, पानी से ही सांस लेती है, तो है नहीं नहीं, मछली के वो जो फेफड़े होते हैं, वो गिल्स होते हैं, उसमें पानी तो जाता ही है ना, उसी से वो ऑक्सीजन लेती है अपना। तो वही कहा जा रहा है कि मछली के शरीर में या मुंह में पानी तो जाता ही है, और वो सारा का सारा पानी निकाल दे रही है वैसे ही, या उसको पी रही है, ये कोई बता नहीं सकता है, ठीक है। उसी का उन्होंने एग्जाम्पल लेते हुए कहा कि अगर जैसे कि सरकार है या अधिकारी लोग हैं, वो पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार से पैसा आ रहा है, उस पैसे से काम कराना होता है या जो भी करना होता है, तो वो सरकारी अधिकारी सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। अब उस पैसे के ट्रांजैक्शन में कोई पैसा कुछ अपनी जेब में भी डाल ले रहा है तो उसको पकड़ना मुश्किल है, समझ लिए? यानी करप्शन की बात कही जा रही है कि अब होता ही है कि भाई अब किसी के पास भी, मान लीजिए एक प्रिंसिपल है, उसके पास आया बच्चों को देने के लिए भाई 1 लाख रुपया, कि 1 लाख रुपया फंड आया है, उससे बच्चों को जो है किताबें और जो भी ड्रेस वगैरह जो भी कुछ देना है। हाँ 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 हाँ, तो वही कह रहा है, 1 लाख रुपया आया, वो पता चला कि 90 या 80 हजार या 60 हजार देता है, बाकी अपना है। तो अब इतना जो है मतलब टाइट मॉनिटरिंग नहीं किया जा सकता है कि आप एक एक पैसे का हिसाब रखें। तो अब मैं कह रहा हूं कि उस समय डेवलपमेंट चल रहा था, अच्छा खासा सब चीजें चल रही थी। थोड़ा सा यही हुआ था, कुछ पार्टियां, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के कुछ सहयोगी जो थे वो थोड़ा सा कमाने में लग गए थे। अब ये जेटली और सुषमा स्वराज और इन लोगों ने इतना हंगामा किया, हल्ला किया कि करप्शन है, करप्शन है, ये लोग जो है बहुत पैसा लूट रहे हैं, खा रहे हैं। तो जितना कोल ब्लॉक एलोकेशन हुआ था, स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुआ था, सब कैंसिल हो गया। इन्होंने इतना हंगामा किया, विरोध किया, तो कोर्ट ने जो है उसको कैंसिल कर दिया, और बहुत सारे काम जो है वो रुक गए। देखिए होता है, मैं यही कह रहा हूं ना कि आदमी को तो इतनी समझ है नहीं, आम आदमी को तो जो वोट दे, जो बोल दिया भाषण में सामने, जो ऐसा बोल दिया, खुश हो गया, हाँ हाँ मोदी मोदी करने लगता है। तो किया हुआ ये सब उस समय भाजपा का ही है। उस समय जो है यहाँ जेटली थे, सुषमा स्वराज और ये लोग थे, और राजनाथ सिंह लोग थे। तो इन लोगों ने इतना किया कि सब कैंसिल करवा दिया, जो कांग्रेस ने उस समय
सब स्कीम किया था। अब हुआ क्या कि जब वो कैंसिल हो गया तो वो लटक गया हवा में, बीच में रुक गया, क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगा दिया। उसके कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, वो बीच में रुक गए। और उसमें जिन लोगों ने पैसा लगाया था, लोन लिया था काम करने के लिए, उनका वैसे काम रुक गया, पैसा रुक गया, सब रुक गया। तो आज ये जितने लोग भागे हैं, माल्या जैसे या अंबानी जैसे डूबे हैं या बिरला जैसे, उसका कारण यही है कि इन्होंने काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए थे और वो सारे प्रोजेक्ट जो है वो रुक गए। रुकवाना ही भाजपा का ही है, कम शैतान नहीं है जितना ही सब नाटक कर ले। मैं मोदी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाजपा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और उसके बाद जो है उसका इन्होंने सहारा लिया, देखा कि कांग्रेस, उस समय कांग्रेस का खराब चल रहा था समझ लीजिए, तो कांग्रेस भी सख्त, क्योंकि मनमोहन सिंह बेचारे थे, अब मनमोहन सिंह टाइट एडमिनिस्ट्रेटर थे नहीं, तो इन्होंने जो है, इन लोगों ने कांग्रेस की खटिया खड़ी कर दी, कांग्रेस की सरकार गिर गई, मतलब चुनाव हार गई कांग्रेस। इतना ज़्यादा इन्होंने हल्ला कर दिया, करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है, कि कांग्रेस भी हार गई और दिल्ली में भी कांग्रेस हार गई, शीला दीक्षित हार गई, जबकि बहुत अच्छी वो मुख्यमंत्री थी। और अब क्या हुआ कि अब फिर ठीक है, इनकी सरकार बनी, इनकी सरकार बनी, और अब ये क्या कर रहे हैं, देखिए अब इनकी हालत खराब है, इकोनॉमी में कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डिप्रेशन आया हुआ है, तो होगा कहां से। कोई जो है, देखिए इतना इन्होंने ये किया है, गलत किया है भाजपा वालों ने, क्या कहे किसी को आदमी, इन्होंने ऐसा खराब कर दिया यहाँ का जो एक विश्वास था लोगों का, बिजनेसमैन। हाँ देखिए, तो क्या हुआ कि इतना इन्होंने ये कर दिया कि कोई बिजनेसमैन पैसा नहीं लगाना चाह रहा है हमारे देश में। देखिए कितना, आप इतना दिन में करंट अफेयर्स देखे होंगे 2 साल में, कितना बिजनेस मीटिंग, समिट, ये सब जो है करता है लोग, कभी गांधीनगर में, कभी दिल्ली में, कभी यहाँ वहाँ, कभी योगी कर रहे हैं, कभी हर चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। इतना ज़्यादा हो रहा है, बेचारा झारखंड तक में कर दिया हेमंत सोरेन जो है, और उसके बावजूद कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं। आज भी देखिए क्या हाल है, वही का वही, खाली लोगों को ठगा जा रहा है। इट इज, मतलब क्या कहें, इतनी बड़ी ये जो है साजिश है, और दिखाया इसे जा रहा है कि मोदी जो है आ गया, जो है स्वर्ग से उतर के कल्याण कर देगा देश का। अब मैं पर्सनली इसमें मोदी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट इट इज द बीजेपी विच इज टू बी ब्लेम्ड। नहीं, आरएसएस नहीं, सरकार का बीजेपी है, सरकार आरएसएस ही कर रहा है, जो है, आरएसएस से करवा रहा है। तो पहले जो है इन्होंने ही इकोनॉमी को चौपट किया, इंडिया की इकोनॉमी चौपट हो गई, और जितने बिजनेसमैन थे वो इतना ज़्यादा, मतलब क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है वो विश्वास पे काम करता है। भाई देखिए, हर कोई फायदे के लिए काम कर रहा है, कोई घाटे के लिए काम नहीं कर रहा है, या कोई समाज सेवा के लिए बिजनेस नहीं शुरू किया है, और आप उसका फायदा भी नहीं होने देंगे तो वो क्यों बिजनेस करेगा। इन लोगों ने इस सब को बैठा दिया। आज समझिए कि जो माल्या भागा भागा फिर रहा है, माल्या या जितने भी ये लोग भागे फिर रहे हैं, क्या क्या नाम है बहुत सारे लोगों का, या जो अनिल अंबानी बेरोजगार हो गया, और ये बिरला की हालत खराब हो गई थी, बिरला भी जैसे तैसे अभी चला रहा है किसी तरह अपना इज्जत बचाए हुए परिवार का। तो इन लोगों का जो इतना और इतना ज्यादा देश की इकोनॉमी बैठ गई, अभी तो आप समझ ही नहीं सकते हैं कि आप तो अभी इतना उस समय जानते नहीं थे क्या क्या हुआ, उतना आपको जानकारी ही नहीं थी। इतना ज्यादा इन्होंने सरकार में भी मिसट्रस्ट फैला दिया कि कोई अधिकारी उस समय काम करने को तैयार ही नहीं था, और पूरी सरकार बैठ गई, चौपट हो गई, सरकार पूरी चौपट हो गई, देश की इकोनॉमी बैठ गई,
तब ये लोग को मौका मिल गया। मोदी तो ऐसे ही मौके की तलाश में था, इसको तो अपना घोड़ा सा धाना था कि भाई मैं किसी तरह बन जाऊं बड़ा मंत्री वगैरह कुछ, तो इसी में लगा ही हुआ था मुख्यमंत्री बनने के बाद से। तो मोदी ने देखा, और सब जो है भाजपा वाले देखे कि अब कांग्रेस को तो बैठा ही दिए, अपनी सरकार बनाते हैं, कि कभी सरकार का मुंह देखे नहीं थे, सरकार का मुंह देखने को मिल गया कि हाँ भाई हम भी सरकार बनाएंगे। तो सरकार बनी। अब जो है मोदी अपना खेल खेला, ये स्कीम लाओ, वो स्कीम लाओ, ये योजना लाओ, वो प्रोग्राम लाओ, बहुत सारा चीज किया, जितना करना था ड्रामा। तो आज इतना मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, क्या क्या इंडिया आया, और चला कोई नहीं, काम कोई नहीं किया, सब बैठा हुआ है, समझ गए। दिखावटी हुआ शुरू में जो है, और आज देखिए कि 2 टर्म खत्म होने जा रहा है, हालत वहीं का वहीं है, बिजनेस के और डूब गया सब। और अब मोदी जो है, या जो भाजपा के आज के लोग हैं, वो चाह रहे हैं दिखाना कि हाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, निर्मला सीतारमन को इतना मेहनत कर रहे हैं, जो भी लोग अभी मंत्री हैं उनसे खूब। अच्छा हुआ क्या, इसको मोदी को क्या फायदा मिल गया कि सब नया लोग को, ऐसा लोग को खड़ा किया जो पहले कभी संसद में था नहीं, जैसे केजरीवाल वहां किया दिल्ली में, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो सब देखे कि नए नए थे, बस मोदी है तो मोदी 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 करने लगे सब, और पूरे देश में खाली मोदी 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 करवा रहे हैं। अपने कुछ जानते थे नहीं तो भाई मोदी का नाम लेंगे, क्या करेंगे। तो इस तरह मोदी ने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर कर लिया। सबसे बड़ी बात कि ये इलेक्शन कमीशन को कैप्चर किया। इलेक्शन, वही मैं कह रहा हूं, इससे बड़ा मतलब यही बात, दिक्कत यह है कि कांग्रेस अपनी बात रख ही नहीं पा रही है, क्योंकि उस, हाँ क्योंकि इन लोग को बोलना ही नहीं आता है पॉलिटिक्स। जो अभी नेता हैं, जितने लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जितने लोग, उन लोग एक्टिव पॉलिटिक्स कभी किया नहीं, जानता नहीं लोगों को कैसे इंप्रेस किया, कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, ये जानता नहीं है लोग। हाँ, इधर भाजपा का जो है मोदी लोग, पुराना नेता जो है सब, देखिए भाषण देगा खाली कौन, मोदी देगा और अमित शाह देगा, बाकी सब काहे नहीं भाषण देता है। गिना चुना जो 4-5 लोग है, जायसवाल हो गया, नड्डा हो गया, अमित शाह हो गया, मोदी हो गया, 4 आदमी, उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा, भाषण नहीं देगा, क्योंकि वो लोग जानवे नहीं करता है, ठगना यही लोग मास्टर माइंड है खाली। तो अब समझिए कि क्या हो रहा है जनता के साथ और देश के साथ, कि अच्छे से चल रहा था कांग्रेस के समय, इतना बढ़िया उस समय काम चल रहा था, देश का बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा था। और ये बात भी मानी हुई है कि जब भी डेवलपमेंट होता है तो थोड़ा बहुत करप्शन होता ही है, तो उसको एक्सेप्टेबल माना जाता है कि ठीक है उसका क्या कर सकते हैं, थोड़ा होता है। लेकिन ये लोग उसका इतना जो है तमाशा बना दिया, क्योंकि अपनी सरकार बनानी थी, किसी तरह कांग्रेस को डुबाना था, गिराना था उसका सरकार। और जेटली जेटली तो मैं क्या बोलूं, मर गया अपने जो है, तो सोचता था प्रधानमंत्री हम बन जाएंगे, हैं, प्रधानमंत्री बनने का सोचता था वो, और सुषमा स्वराज दोनों दोनों चल दिए। अब मोदी तुमको बनने दे रहा था, ये तो किसी, ये किसी को अभी सब सपना देख रहे थे, जितने राजनाथ सिंह, आपके गडकरी, अभी अमित शाह देख रहा है, तो ये लोग सब जो है देख रहे हैं कि जो है, देख रहे थे कई बार बीच में, सोचे कि किसी तरह मोदी को गिरा दिया जाए और अपने बन जाया जाए। कैसे गिराएगा क्या, अपना एमएलए एमपी सबको अपना उसमें कर लेगा, तो मोदी का कुछ शिकायत हुआ कि मोदी का सपोर्ट खींच लेगा। अरे तो हाँ हाँ, होता ही, इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं किया था, कांग्रेस से निकाल दिया गया था। इंदिरा गांधी की तो आप हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं। इंदिरा गांधी को जो सब तो कांग्रेसियों ने ना उनका खिलाफ, मोरारजी देसाई और ये सब सब हो गए थे, कांग्रेसी न थे। मोरारजी देसाई को बनना था प्रधानमंत्री, नहीं तो कहाँ से वो बनता प्रधानमंत्री। तो इंदिरा गांधी का सरकार गिरवाए लोग, जयप्रकाश नारायण को चढ़ा दिया ऊपर,
जयप्रकाश नारायण बेवकूफ़ आदमी, इमोशनल आदमी, चढ़ गए झाड़ पर जो है, और इंदिरा गांधी के खिलाफ भाषण देना सब जगह शुरू कर दिए, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो देसाई को बनना था मुख्यमंत्री, तो सब तो अपना ही पार्टी वाला। तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, भारी चल रहा है, मोदी सब जानता है। दिक्कत यह है, मोदी ने क्या किया चालाकी कि जनता पर अपना पकड़ बनाए रखा, उसने किसी और का पकड़ नहीं बनने दिया जनता पर। जहां जाएगा यही भाषण देगा, जहां होगा यही जाएगा, जहां होगा यही जाएगा। तो लोग क्या है, मोदी को जानेंगे। तो इसने देखा कि न दूसरे का किसी का लोगों से इंटरेक्शन होगा, न दूसरा कोई मेरे कॉम्पिटिटर पैदा होगा बीजेपी में। ठीक है, तो खैर वो मोदी का एक पर्सनल है, और ठीक है, वो दिखाने के लिए इतना ज्यादा ये प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, वो प्रोग्राम लॉन्च किया जाए, कर रहा है। अरे प्रोग्राम लॉन्च के क्या करोगे, पहले तो चौपट तुम ही लोग किए हो इकोनॉमी को, और इकोनॉमी में ऐसा हेरा फेरी की गई है कि किसी को पते नहीं चले। सारा चीज जो है इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया, सब चीज बदल दिया, इतना ज्यादा बदल दिया कि अब किसी को हवे नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है। इकोनॉमिस्ट लोग हैं उनको भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि सारा चीज, सारा डेटा, सब का तौर तरीका बदल दिया। बहुत तेज है, तेज तो बहुत है ही, ऐसा कर दिया कि किसी को हवे नहीं लगे कि क्या हो रहा है देश में। और उसके बाद जो है इस तरह का अपना पकड़ बना लिया कि, और ऐसा लोगों को भांग खिला दिया। धर्म का नाम जानता है कि धर्म का भांग खिला दो, फिर लोगों का दिमाग बंद हो जाता है। ये अडवाणी भी किया, ये जो है वाजपेयी भी करते थे कि धर्म का भांग देखे कि और कोई मुद्दा नहीं, तो राम मंदिर का मुद्दा उठाए उस समय की, और क्या मुद्दा चुनाव के लिए बनाया जाए, हम लोग कोई पूछवे नहीं करता है। तो एक राम मंदिर का मुद्दा लेके अडवाणी आए थे, वो भी ऐसे ही मर गया जो है प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में, कि प्रधानमंत्री बनेंगे अडवाणी। है, हाँ, तो वही कह रहा है कि हम्म, हम्म, हम्म। तो ये देखिए हम्म, केवल कैबिनेट मिनिस्टर सब बैठता है कि पूरा नेता सब बैठ के डिस्कशन करता है कि किसको देना है, किसको नहीं दिलवाना। नहीं नहीं, वो सबका राय देखा जाता है, और सरकार का मत होता है, सरकार देखती है कि, और उसमें फायदे, आजकल तो बोले ना हर चीज पॉलिटिक्स हो गया है, क्या कहें आजकल तो। मतलब जितना जीता हुआ एमपी सब बैठता है। हाँ हाँ, अरे सरकार तय करती है, सरकार तय करती है, अब सरकार जो है तय करेगी तो अब जैसे तय करे। ठीक है, कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं कि मंत्री नहीं होने, सब सब बैठता है, डिस्कशन करता है। हाँ हाँ, जो मंत्री नहीं भी है लेकिन चुनाव जीता हुआ अरे है, सब की मिली भगत होती है। देखिए अब ये सब भी पॉलिटिक्स हो गया कि उस जात का कोई नेता है, मंत्री था या कोई था, उसको दे दो तो उस जात के लोग का वोट मिल जाएगा। समझ गए, सब चीज अब पॉलिटिक्स हो गया है, ये सब जो है, तो ये सब का कोई मतलब नहीं है, खाली बेवकूफ़ी है, भारत रत्न और ये सब। खैर, तो अभी मेरे दिमाग में आई ये बात आपको पढ़ाने के समय कि देखिए, मुझे याद है क्योंकि मैं तो पिछले 10-15 साल से थॉरोली देख रहा हूँ, ये लोग पर नज़र है मेरी, क्या भारत में हो रहा है। तो और अभी सब मिल गया है, देखिए जिसका है आज तक वाला जो है मिला हुआ, इधर अपना चैनल चला रही है अंजना कश्यप, जो है लेके अपना घूम रही हेलीकॉप्टर, उसको तो अपना चैनल चलाना है, अपना चल रहा है। मोदी और राम को तो देखे नहीं लोग, लेकिन अंजना को जरूर देखें, तो अपना चैनल चल रहा है 24 घंटा जो है। तो खैर देखिए, जिसका जिसका जो है अपना करता है, सब लोग अपना ही करने के लिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि देश की इकोनॉमी अगर आज सफ़र कर रही है, आज देश में बेरोजगारी है, या देश में जो है हालत ख़राब है बिजनेस की, तो उसका कारण यही बीजेपी लोग हैं। और कांग्रेस को अभी अकल ही नहीं है कहने का, जो है क्या कहे, मतलब ये लोग का तो ऐसा है कि वही बात है कि जब आप में क्वालिटी ही नहीं है तो आप क्या compete करिएगा, क्या। ये लोग तो ऐसा है कि छोटा सा बात ये लोग कुछ बोलता है तो उसका कुछ का तिल का ताड़ बना देता है लोग के सामने, और अपना फेवर में कर लेता है। मोदी का देखिए,
कुछ बोलेगा उसको ऐसा उल्टा उलट देगा कि इसी के फेवर में हो जाएगा बात। ये लोग पॉलिटिक्स जानता ही कहाँ है। ठीक है, तो जो है आज इकोनॉमी अगर हमारी, मैं बता रहा था आपको कि डूब गई है, इतना बुरी हालत में है, कारण यही लोग हैं। और अब जब चूंकि आप ही डुबाए थे तो कहाँ से बढ़ेगा, समझ गए। तो देखिए कितनी बड़ी साजिश है कि पहले डुबाओ, अब फिर उठाने का नाटक करो। अब पब्लिक खुश कि हाँ भाई ये लोग तो कितना मेहनत कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमी को के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और इकोनॉमी क्या होता है, मतलब ये पॉलिटिक्स से समझ थोड़ा अलग होता है क्या? इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी है कि माने देश में जो भी कामकाज हो रहा है, जो पैसे जिस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, मॉनिटरी वो इकोनॉमी है, समझ गए। कैपिटल अलग हो गया, इकोनॉमी अलग हो गया। कैपिटल तो पूंजीवादी का अलग। कैपिटल देखिए, कैपिटल तो हम कहते हैं जब कोई हम काम बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें जो हम पूंजी लगाते हैं, जो अपना रिसोर्स लगाते हैं, उसको कैपिटल कहा जाता है। वो कैपिटल वो अलग हो गया। हाँ, इकोनॉमी जो हम कहते हैं, इकोनॉमी का मतलब होता है, इकोनॉमी अगर वर्ड यूज करें जिसको हिंदी में हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो ये पूरे देश के जो सिस्टम को कहते हैं, जो भी कामकाज का सिस्टम होता है। ठीक है, जहां भी पैसे कामकाज हो रहा है, पैसा वाला काम हो रहा है, वो सब इकोनॉमी है। ठीक है, देश में जितना भी काम अभी इस सेकंड हो रहा होगा, ठीक है, वो सब वही सब इकोनॉमी है। काम के सिलसिला में भी पैसा लग रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, काम काज अलग हो गया, पैसा अलग हो गया, तो मतलब फिर दोनों आ जाएगा। कामकाज पैसे ही के लिए ना होता है। देखिए कामकाज किस लिए होता है, आप बताइए। कोई भी सर्विस। हाँ, कोई भी काम, देखिए अल्टीमेटली कोई भी काम तो पैसे ही के लिए होता है। और वो फिर के बाद पैसा पे आता है। हाँ, क्योंकि देखिए एक डॉक्टर अगर मरीज देख रहा है तो किस चीज के लिए देख रहा है, पैसे के लिए देख रहा है? एक कारपेंटर अगर एक चेयर बना रहा है, काम कर रहा है, तो किस चीज के लिए आखिर बना रहा है वो, ताकि उससे उसको पैसा मिल सके। चेयर जो है बनाएगा, बेचेगा तो पैसा कमाएगा, या उसके मेहनताना का पैसा लेगा। एक आईएएस ऑफिसर काम कर रहा है तो आखिर वो क्यों काम कर रहा है, ताकि उसको सैलरी मिले। फ्री के लिए नहीं ना कर रहा है कि हम काम करेंगे पैसा नहीं लेंगे। नेता मंत्री जो भी जो है वो भी काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, उसके बदले उन्हें पैसा मिले, और पैसा कहिए, सुख सुविधा कहिए, जो भी चीज कहिए, तो एवरीथिंग गोइंग ऑन। तो लेकिन वहां हम पैसे से जोड़ के जब देखेंगे उस चीज का, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमी। कोई भी चीज मतलब पैसा आ ही जाता है सबसे पहला। अल्टीमेटली तो पैसा इन्वॉल्व है ही ना, क्योंकि देखिए आप आज की दुनिया जो है वो पैसों की दुनिया है, हर चीज पैसों से चलती है। और ऐसे में कोई भी काम कोई क्यों करेगा, पैसे के लिए ही कर, मतलब जो भी पैसे के लिए हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि मान लीजिए अपने खुशी के लिए भी कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दया की भावना से भी बहुत काम कर रहे होंगे, लेकिन वो सब इकोनॉमी में नहीं आएगा। जहां भी काम पैसे से जुड़ा हुआ, पैसे के लिए हो रहा है, वो काम इकोनॉमी हो जाएगा। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करें।
तो देखिए, so we were studying that unemployment लीड्स टू लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी हमारा जो जीवन का स्तर होता है वो गिर जाता है। उसके बाद एप्रीहेंशन ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी अनएम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमिक डिप्रेशन का होने का डर होता है, उसकी आशंका होती है। इफ पीपल आर नॉट यूज्ड एज रिसोर्सेज दे विल बिकम बर्डन ऑन द इकोनॉमी। कहा जा रहा है कि अगर लोगों को एक रिसोर्स की तरह यूज ना किया जाए तो वो जो है इकोनॉमी पर बोझ बन जाते हैं। ठीक है, नेचुरल बात है कि भाई देखिए, इन्वेस्ट मैं आपने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स, जब आपने पढ़ा कि कैसे कोई ह्यूमन रिसोर्स बनता है, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है, उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसके समाज के द्वारा, उसके सरकार के द्वारा, है ना, तब जाके वो एक, अब क्या एक डॉक्टर ऐसे ही बन जाता है? डॉक्टर ऐसे ही बन जाता है? इंजीनियर ऐसे ही अच्छा बन जाता है? नहीं, उसमें बहुत कुछ रिसोर्सेज लगे होते हैं। बचपन से उसे शिक्षा मिलती है, खाने पीने की सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य सुविधा मिलती है, अच्छा माहौल मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, कॉलेज में एडमिशन, ये सब सब तरह का खर्च होता है, तब जाके एक डॉक्टर इंजीनियर तैयार हो पाता है। और आगे चल के वो डॉक्टर इंजीनियर कोई का डॉक्टर क्लिनिक खोले और वो कोई पेशेंट ही नहीं आ रहा है उसके पास, या वो देख नहीं पा रहा है, तो क्या हो रहा है? वो एक तरह से अब बोझ बन जाएगा समाज पर, क्योंकि उसको इनपुट तो चाहिए ना। डॉक्टर है, कमा नहीं रहे, लेकिन बिना खाए तो जी नहीं पाएगा, उसको भोजन तो चाहिए, उसको और फैसिलिटीज चाहिए, बिना उसके वो जी नहीं सकता है। तो अब वो कुछ काम नहीं कर रहा है, उसका इनकम नहीं हो रहा है, लेकिन उसका खर्च तो है, तो एक तरह से तो क्या होता है, वो बोझ बन जाता है समाज पर, परिवार पर, या जिस पर भी। तो यही कहा जा रहा है कि अगर लोगों का इस्तेमाल नहीं हो पाता है रिसोर्स की तरह, यानी उनसे काम नहीं लिया जाता है, तो दे विल बिकम बर्डन, वो बोझ बन जाएंगे इकोनॉमी पर। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अच्छा आप पूछ रहे थे इकोनॉमी वर्ड की बात। यस सर, वही थोड़ा सा। तो इकोनॉमी देखिए, जो हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है कि जिसमें कामकाज का पैसों से जुड़ा हुआ जो पूरा कामकाज होता है, उस सिस्टम को हम इकोनॉमी कहते हैं। समझ गए? जैसे देखिए, मैंने कहा कि वैसे अगर आप देखेंगे तो कोई भी काम पैसों से ही जुड़ा हुआ है, पैसों से ही हो रहा है। किसी भी चीज को देखने के कई तरीके हैं, समझ गए? तो किसी भी चीज का जब हम पैसे से जुड़ा हुआ पहलू देखते हैं तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ये इकोनॉमिक डूब जा रहा है, ये क्या मतलब हुआ? इकोनॉमी का काम मत डूब गया ना, है, इकोनॉमिक डूब गया, देश का मतलब काम काज डूब गया, क्या डूब गया? इकोनॉमिक डूब अच्छा गया। बता रहे हैं, समझा देते हैं आपको। देखिए, ठीक है, वो मुश्किल होता है शुरू में समझना, इसीलिए आपको ये थ्योरी पढ़ाया जा रहा है ताकि आप समझ सके। समझे? आप पूछे कि सर ये सब थ्योरी किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि आप कहीं कोई कहे कि इकोनॉमी डूब गई है, इकोनॉमी स्लो हो गई है, तो क्या स्लो हो गया है, क्या डूब गया है, वो आपको समझ में। बहुत बड़ा लोग नहीं बता पाए। हाँ नहीं, इसीलिए तो बोले ना कि इसको समझना आसान नहीं होता है, और हम लोग का भी शुरू में बहुत ही मतलब एकदम दिमाग खराब हो जाता था, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई कि मुझे एक समय बहुत ही गहरी समझ हो गई इकोनॉमी की। खैर देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक शादी ब्याह हो रहा है, यस सर। किसी एक लड़का लड़की का शादी हो रहा है।
अब शादी हो रहा है तो उसमें बहुत सारे काम होंगे। मान लीजिए अगर हम बेसिक चीज़ों को लें तो शादी होगा, बारात जाएगी, कुछ रस्म रिवाज होते हैं। लड़की के यहाँ कुछ रस्म रिवाज होगा, लड़के के यहाँ कुछ रस्म रिवाज होगा। उसके बाद एक दिन जो है शादी होगा और उसके बाद फिर मान लीजिए रिसेप्शन, तिलक, शादी, रिसेप्शन जो भी होता है। तो अब इसको जो है हम एक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई शादी हो गया या शादी हो रहा है, मैरिज हो रहा है। अगर हम सोशियोलॉजी के हिसाब से देखें तो हम कहेंगे कि मैरिज इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, वहां मैरिज एक वर्ड आ जाता है, मैरिज को स्टडी किया जाता है सोशियोलॉजी में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैरिज। अगर हम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, कल्चर के हिसाब से कहते हैं, तो हम कहेंगे कि अरे भाई ब्याह हो रहा है, शादी हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा शादी में जो रस्म रिवाज होता है और एक लड़का लड़की आपस में फिर पति पत्नी होके जीवन अपना गुजारते हैं, परिवार चलाते हैं। अगर कोई एक जो इकोनॉमी की तरह से वो क्या बोलेगा कि भाई बिजनेस हो रहा है, मतलब कि पंडित आएगा वो कुछ करेगा उसका पैसा लेगा, नाई हजाम आएगा वो कुछ करेगा उसका अपना पैसा लेगा, बहुत सी चीज़ें खरीदी जाएंगी और गिफ्ट की जाएंगी। ठीक है, हाँ, खाना वाना बनेगा, खाना खिलाया जाएगा तो वो खाना का बिजनेस होगा, मतलब खाने का उसको काम मिलेगा, बैंड वाले को काम मिलेगा, टेंट वाले को काम मिलेगा, ठीक है, पंडित को काम मिलेगा, वर्कर्स को काम मिलेगा, केटरिंग वाले को काम मिलेगा, पंडाल वाले को या मैरिज हॉल वाले को काम मिलेगा, इतना का वो पैसा का वो ट्रांजैक्शन करेगा, काम होगा उस दिन। ठीक है, तो जब हम पैसों के टर्म्स में देखेंगे कि हाँ भाई पंडित जी को इतना 5,000 दक्षिणा पड़ेगा, 10,000 दक्षिणा पड़ेगा, पंडित जी को अपना शादी कराएंगे तो इतना पैसा लेंगे, केटरर वाला जो है 1 लाख लेगा, जो मैरिज हॉल वाला 2 लाख लेगा, बैंड वाले 50,000 लेंगे, सजावट वाले जो है 1 लाख रुपया लेंगे, वीडियोग्राफी वाला 1 लाख रुपया लेगा। ठीक है, खाना पिलाने का खर्च जो है खिलाया पिलाया जाएगा उसमें 5 लाख रुपया खर्च होगा। ठीक है, फिर गहना ज्वेलरी सब खरीदा जाएगा उसमें मान लीजिए 20 लाख रुपया खर्च होगा। तो ये उन्हीं चीजों को जब मैं पैसे के टर्म्स में देख रहा हूं, समझ गए, तो वो होता है इकोनॉमी, वहां वर्ड आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, देखिए जो भी काम हम अपने गुजारे भत्ते के लिए करते हैं, अपना गुजारा करने के लिए, जैसे आपने पढ़ा ना, मैंने पढ़ाया था ऑक्यूपेशन का, आपने डेफिनेशन पढ़ा था कि एनी वर्क विच इज डन, ठीक है, इन जिसको करने पर कि कुछ उस व्यक्ति को रिसोर्सेज या मनी या जो भी कुछ दिया जाता है, तो जब भी कुछ उसी को ऑक्यूपेशन कहा जाएगा, यानी कि जब भी कुछ पैसे के लिए या किसी तरह का रिसोर्सेज के लिए कोई काम किया जाता है तब उसको ऑक्यूपेशन कहा जाता है। पढ़ा था ना आपने? हाँ, मैंने समझाया भी था कि ऐसे एक माँ अपने बेटे को कुछ खाना बना रही है तो वो ऑक्यूपेशन नहीं है, वो सिर्फ फैमिली के लिए कर रही है, उसके बदले उसको पैसा नहीं मिल रहा है, बेटा उसको पैसा नहीं देता है कि लो माँ इतना पैसा मुझे खाना खिलाई। लेकिन हाँ, वही औरत अगर कहीं जाके काम करती है, वहां खाना बनाती है और उस खाना बनाने के बदले महीने में 8,000 10,000 जो भी अगर पैसे लेती है तो वो ऑक्यूपेशन हो जाएगा। लेकिन जब अपने बेटे को खाना बना के खिला रही होगी तो वो ऑक्यूपेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके बदले उसको ना पैसा मिलता है या कोई और ऐसी चीज मिलता है। तो इसी को ऑक्यूपेशन जो हम बोले उसी को हम कहे इकोनॉमिक एक्टिविटी, समझ गए? तो इकोनॉमी को कहते हैं कि मतलब है कि जो भी अपना गुजारे के लिए जो कुछ किया जाता है, ऐसे काम को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब कोई भी काम करता है तो पैसा क्यों लेता है उसके बदले, आप ये सोचिए। एक जूता का दुकान खोले हुए, वो जूता बेच रहा है तो जूते के बदले पैसे हमसे क्यों लेता है? ताकि उस पैसे से वो अपना जिंदगी चला सके,
गुजारा कर सके, यानी अपना लाइवलीहुड कमा सके। तो वहां ऑक्यूपेशन में आपको वर्ड आया था लाइवलीहुड, कि एनी वर्क दैट इज डन टू गेट सम लाइवलीहुड इन फॉर्म ऑफ मनी और सम अदर रिसोर्सेज। तो कोई भी जो आखिर, अब कोई आईएएस है, काम कर रहा है, सैलरी लेता है, सैलरी किस लिए लेता है? ताकि अपना अपने परिवार का गुजारा कर सके। कोई भी आखिर पैसा की जरूरत ही क्यों होती है? पैसे की जरूरत क्यों होती है? टू सेटिस्फाई सम नीड, कोई जरूरत को पूरा करने के लिए। अगर मेरी कोई जरूरत नहीं है, मान लीजिए कि मैं ऐसा पर्सन हूं कि जिसकी कोई जरूरत नहीं है आज के समय में, तो क्या मेरे लिए पैसा कोई काम का है? कोई काम का नहीं। मान लीजिए कि मुझे खाना पीना खाली चाहिए, तो मैं सुबह शाम दूध और कुछ खा के अपना आई एम सेटिस्फाइड, और उतना दूध मुझे कहीं से मिल जा रहा है मान लीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं कुछ करता हूं, ना कोई और मेरी जरूरत है कोई, तो क्या मेरे लिए पैसे की कोई अहमियत है? नहीं, पैसे की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं, क्योंकि पैसे का मैं क्या करूंगा? क्योंकि मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है। और पैसे से क्या होती है? जरूरतें पूरी होती है, नीड्स पूरी होती है, इच्छाएं पूरी होती है। हाँ, मुझे ये चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, टीवी के लिए पैसे, मुझे आइसक्रीम खाना है, उसके लिए पैसे चाहिए, मुझे चाउमीन खाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। लेकिन जब मुझे कुछ खाना ही नहीं है, तो पैसे का मैं क्या करूंगा? वो पैसे बेकार है मेरे लिए, दे आर यूजलेस। तो पैसों की जरूरत क्यों होती है? टू सेटिस्फाई सम नीड। तो जो कुछ भी किया जा रहा है वो क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ फल के लिए किया जा रहा है, फॉर सम डिजायर। और जहां डिजायर है, तो वहां आज के समय में डिजायर कैसे पूरे होते हैं? पैसे से। आज का जो समय है, हर चीज पैसे से। भाई आपको किसी से, आपको कोई फल खाने का मन है, वहां फल लिए हुए कोई खड़ा है, वो आपको फल कैसे देगा? पैसे से ही देगा। पहले का एक समय था कि गया फल वाले के पास, एक उसको गाना सुना दिया, और मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ, गा दिया, हाँ भाई लो एक फल खा लो, गाने के बदले उसको फल खिला देता था। कोई बांसुरी बजाना जानता था, वो बांसुरी जाके बजा दिया, उसको लाके थोड़ा सब्जी दे दिया कि लो भाई ये हरी सब्जी ले जाओ खाना। आज के समय में कोई देगा? देता है? नहीं। आज के समय हर चीज पैसे से होती है। इफ यू गिव मनी यू विल गेट, यू कैन परचेज एनीथिंग, विदाउट मनी नथिंग। आप पढ़ने जाइएगा कहीं, वो पढ़ाएगा नहीं, बोलेगा नहीं भाई पैसा दोगे तब पढ़ाएंगे, फ्री में थोड़े पढ़ाएंगे। पहले विद्या मानी जाती थी कि चलो भाई विद्या निःशुल्क देनी चाहिए, अब कोई दे निःशुल्क विद्या। तो क्योंकि आज का जो समय है, हर चीज पैसे पर आधारित हो गई है, धीरे धीरे हुई है, अचानक से नहीं। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मनी। तो हर काम जो पैसे के लिए होता है, तो जितना भी काम काज हो रहा है, उसका जब हम उसका पैसे के नजर से देखते हैं उसको, तो तब हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ गए? उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पूरे देश में जो भी हमारा पैसों और काम से जुड़ा हुआ जो व्यवस्था है, उसी को हम कहते हैं इकोनॉमी। समझ गए ना? सिस्टम है, जैसे देखिए सिस्टम है, आप समझिए पूरे देश में आप कहीं भी जाइएगा
और आपको कोई सामान खरीदना है, किसी दुकान में जाइएगा, वहां आप दुकान में जाते हैं, बोलते हैं भाई ये सामान मुझे चाहिए, वो कहता है इसका कॉस्ट इतना है, आप उसको उतना पैसा देते हैं तो वो आपको सामान दे देगा। Yes, sir. इससे अलग है पूरे देश में कहीं? No. कहीं भी जाइएगा, जो सामान चाहिए वो बोलेगा इसका, उस पर लिखा रहेगा इतना कॉस्ट है, या वो बताएगा कि इतना प्राइस है, भाई आप उतना पैसा उसको दे दीजिएगा, वो आपको दे देगा। या कहीं ऐसा भी करेगा कि हम तमिलनाडु में चले गए, बोले भाई बिस्कुट देना, आपने 10 रुपया दिया, बोला मैं नहीं दूंगा, आप पूछे क्यों नहीं? नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं है। ये पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है कि कोई सामान है, अगर कोई सामान है आप उसका प्राइस देंगे तो वो आपको सामान दे देगा। कोई सर्विस देने के लिए है, आप उसका पैसा देंगे वो आपको सर्विस देगा। जैसे आप कहीं भी जाइएगा, होटल में बैठिए, खाइए, पैसा पे करिए। कहीं भी जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर देखेगा आपको, अगर आप उसको पैसा देंगे वो आपको देखेगा। या कहीं ऐसा है कि आप पैसा दीजिएगा, बोलेगा नहीं देखूंगा, या आपको पैसा दीजिएगा तो आपको एक तमाचा मार देगा कि भाई लो एक तमाचा। नहीं, ये पूरा ये है एक यूनिफॉर्म है कि आप कहीं भी जाइएगा, आप डॉक्टर को पैसा दीजिएगा, फीस उसका दीजिएगा तो वो आपका ट्रीटमेंट करेगा। तो ये जो व्यवस्था है पूरे देश में पैसों से जुड़ी हुई, जैसे आप सुधा मिल्क पार्लर पे जाइएगा, उसको 1 kg का प्राइस दीजिएगा तो 1 kg दूध आपको दे देगा। कहीं ऐसा भी है क्या कि आप 1 kg का प्राइस दीजिएगा तो 5 किलो दूध दे देगा आपको? नहीं, हर जगह आप अगर 1 kg का देंगे 1 kg दूध देगा आपको, 5 kg चाहिए तो 5 kg का पैसा दीजिए, वो दे देगा। उसी तरह कहीं भी आप काम करेंगे तो काम के बदले आपको पैसा मिलेगा, किसी तरह का काम हो। और अगर दूसरी तरफ आपको काम लेना है तो पैसा दीजिए, काम आपको करने के लिए सब तैयार है, जो भी काम करना है कर रहा है। कोई कुली है, आप उसको पैसा दीजिए, आपका बोझ उठा के यहां से वहां रख देगा। कहीं कहीं आपको सामान खरीदना है, पैसा दीजिए, सामान आपको दे देगा। तो ये जो एक पूरी व्यवस्था है, पूरी सिस्टम है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं इकोनॉमी। कि जो कामकाज का एक तरीका है, जो पूरी व्यवस्था है, चल रही है, काम मिल रहा है। जैसे जैसे कॉलेज से ग्रेजुएट पास हो रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है, वो नौकरी पर जाके फिर अपना काम कर रहे हैं, फिर उनको सैलरी मिलती है, अपना वो पैसा किराया लेके कहीं मकान लेता है, फ्लैट लेता है, कहीं खाना बनवाता है, कोई आता है उसका खाना बनाने, ठीक है, कहीं जाता है होटल में पार्टी करता है। तो जितना भी ये सब काम हो रहा है, व्यवस्था है। भाई आप होटल में जाइएगा, आपका वेलकम करेगा, आइए सर क्या खाइएगा। या कहीं होटल में जाइएगा, बोलेगा कि मारेगा 1 लाख की, जाइए, नहीं। तो एक सिस्टम है हर जगह, आप पे करिए आपको सर्विस मिलेगा, आप पे करिए आपको जो चीज चाहिए वो चीज मिल जाएगी आपको। या आपको कोई चीज चाहिए, आपको कोई सर्विस चाहिए, तो आपको पता है कि उसके लिए मुझे बस पे करना है। और आज के डेट में मैंने आपको बोला कि लगभग हर चीज अवेलेबल है, हर सर्विस अवेलेबल है, जो सर्विस आपको चाहिए आप पैसा पे करने के लिए रेडी रहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो व्यवस्था है, एक सेटिंग है, सिस्टम है कि हाँ भाई पैसा मिलेगा तो कोई भी काम करें, या काम करेंगे तो पैसा लेंगे। और साथ ही साथ बहुत कुछ हो रहा है, मतलब इस तरह का काम, ट्रक वाला ट्रक से सामान यहाँ से वहां ले जा रहा है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, बढ़ई कहीं बैठ के अपना बना रहा है, फर्नीचर बना रहा है, जो है लोहार जो है कहीं अपना लोहा का सामान बना रहा है। तो ये जितने भी काम हो रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, अफसर जो है अपना गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन इंप्लीमेंट कर रहा है, ट्रैफिक वाला अपना ट्रैफिक देख रहा है, तो इसको अगर हम पैसे से जोड़ के देखेंगे कि हाँ भाई वो काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका काम का कुछ सैलरी है, उसको मिलेगा, मंथली सैलरी मिलता है उसको, इतना का काम कर रहा है। अगर मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस है, उसको मंथली उसको 60,000 रुपया सैलरी है, तो यानी डेली का अगर 30 दिन में देख लें 2,000 का काम है एक दिन का उसका। तो अगर वो एक दिन का काम कर रहा है मतलब 2,000 का काम किया, है ना? तो इस तरह आप हर चीज को जब मनी के टर्म्स में उसका देखेंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और वो इकोनॉमी हो जाता है उसका सिस्टम। दूसरी तरफ आप उसको उसका रूल्स रेगुलेशंस और लॉज के टर्म्स में देखेंगे तो वो पॉलिटी हो जाता है। आप देखेंगे कि भाई ट्रैफिक पुलिस वाला काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि कानून है।
कि जो भी ट्रैफिक पुलिस में शामिल हुआ है उसको अपना ड्यूटी करना है, और ऐसे ऐसे ड्यूटी करना है, इस तरह से ये ड्यूटी करना है। कोई अगर बिना नंबर प्लेट के है उसका चालान करना है, सीट बेल्ट नहीं पर लगाए हुए है, हेलमेट नहीं पहने उसका चालान करना है, तो वो आपका चालान करता है। तो यहाँ उसका जो कामकाज है हम देख रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ का सिस्टम ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम ठीक चल रहा है, सब लोग अपना काम। जब आप कानून की नज़र से देखते हैं तो वो पॉलिटी हो जाता है, कानून और सरकार की नज़र से। और जब आप पैसों के नज़रिए से देखते हैं चीज़ों को तो वो क्या हो जाता है, इकोनॉमी हो जाता है। तो ये इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब हाँ आर, एक मिनट होल्ड करिए। देखिए डिप्रेशन जो वर्ड यूज करते हैं, अब ये तो पूछ दीजिएगा तो अच्छा अच्छा लोग नहीं बता पाएगा। देखिए डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब होता है कोई कोई गड्ढा, कोई खाई, ठीक है, कहीं कोई जो है गड्ढा जैसा कोई चीज है। डिप्रेशन का जो फिजिकल मतलब है कि समथिंग दैट इज लोअर देन इट्स सराउंडिंग्स। आप सड़क पर जा रहे हैं, कहीं गड्ढा है, आप कहेंगे देयर इज अ डिप्रेशन। डिप्रेस मतलब होता है कम हो जाना, घट जाना। तो डिप्रेशन हम कहते हैं कि जब, क्योंकि इकोनॉमी को जो हम स्टडी करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि सब कामकाज जो भी हो रहा है तो वो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इसमें जब रिडक्शन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हैं, कामकाज कम हो जाएगा, जो डेली का जितना कामकाज मिलता था वो कामकाज उतना नहीं मिलेगा, या जितना पैसा मिलता था वो नहीं मिलेगा। डेली अगर एक दुकान है फर्नीचर की और वो डेली 10 चेयर बेचता था, और फिर हो जाए कि डेली वो 2 ही चेयर बेच पा रहा है, तो इसका मतलब घट गया उसका सेल। उसी तरह कोई कामकाज करने वाला है, मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन है, और डेली उसको जो है 5,000 कमा लेता है, और फिर ऐसा होने लगे कि उसका काम का डिमांड कम आने लग गया है, तो नेचुरल है काम कम डिमांड आएगा तो कमाएगा कम। अब 5,000 की जगह पता चल रहा है 1,000 मुश्किल से कमा पा रहा है। जो कोई कारपेंटर है उसको ढेर सारा फर्नीचर का ऑर्डर मिला रहता था बनाने के लिए, काम तेजी से करता रहता था, अब उसको पता चले कोई डिमांड नहीं आ रहा है फर्नीचर के लिए, उसको काम नहीं है तो बैठा रह रहा है, तो उसका काम घट गया, डिमांड घट गया। तो जब चीजें कम हो जाती हैं, घट जाती हैं, डिक्रीज, व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्रीज, वी कॉल इट डिप्रेशन। समझ में आ गया? जितना भी कामकाज हो रहा है, मैंने अभी आपको क्या बोला कि जितना भी कामकाज देश में हो रहा है वो इकोनॉमी है, इस समय वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर वो घट जाए किसी कारण से तो वो, उसी को हम इकोनॉमिक डिप्रेशन कहते हैं। अभी की मतलब कैसे घट मतलब देखिए, पूरे देश का देखा जाता है। हाँ मतलब जहाँ का भी हम देख रहे हैं, वो जरूरी नहीं हो सकता हम किसी छोटे जगह का देख रहे हो, जहाँ का भी देखें उतने जगह की बात करेंगे। अगर पूरे देश का देखेंगे तो पूरे देश का बात करेंगे, बिहार राज्य को देखेंगे तो बिहार राज्य की बात कहेंगे। मान लो बिहार राज्य का है, तो कैसे देखा जाए करा जाएगा तो इकोनॉमिक डिप्रेशन? देखा जाएगा कि बिहार में कामकाज कैसा चल रहा है, बिहार में जो कामकाज चल रहा था वैसा ही चल रहा है, या उसमें बढ़ा है या घटा है।
अगर बढ़ेगा तो ग्रोथ कहेंगे, घटेगा तो डिप्रेशन कहेंगे। या उसी के लिए एक और वर्ड आता है, रिसेशन आता है, RECESSION। समझ में। और डिप्रेशन को डिप्रेशन भी कह सकते हैं हम। हाँ, रिसेशन भी कहते हैं, RE। तो ये पहचान कर रहा है, सुना होगा भोजपुरी में दवा के। देखिए बात यही है ना कि देखिए आप जो अभी पूछ रहे हैं, बोले सर नहीं समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इसीलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आपको इकोनॉमी का बेसिक नॉलेज नहीं है, और उसी के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको इकोनॉमी का बेसिक नॉलेज हो जाए। ये भी है कि अचानक से जो है डायरेक्टली, क्योंकि इकोनॉमी में भी समझने के लिए, जैसे देखिए अचानक से आपको लिखने, आप एक बच्चा है और उसको कहा जाए कि एक एस्से लिख दो, तो एस्से लिख देगा वो? मान लीजिए उसको अब लिखना ही पढ़ना नहीं सीखा है और उसको कह दिया जाए सीधे कि आंसर लिख दो, अरे भाई अभी तो वो ABCD लिखना, पहले अक्षर पहचानना सीखेगा, अक्षरों को जानेगा, लिखना सीखेगा, फिर अक्षर के बाद वर्ड्स सीखेगा, वर्ड्स को जब अच्छे पकड़ हो जाएगा उसका, वर्ड्स का मीनिंग वगैरह, तब वो सेंटेंसेस पर फिर सीखेगा, सेंटेंस पकड़ बनेगा, सेंटेंस पकड़ बनेगा तब वो फिर पैराग्राफ वगैरह 2-3 लाइन लिखना सीखेगा, तब जाके धीरे धीरे जब उसका नॉलेज बढ़ेगा, उसका स्टडी बढ़ेगा, तब जाके वो पढ़ना लिखना सीखेगा अच्छे से, और पढ़ना लिखना जब सीखेगा, सब्जेक्ट समझने लगेगा धीरे धीरे, तब जाके वो आंसर लिख पाएगा। तो उसी तरह इकोनॉमी का जब तक आपको बेसिक, अब अभी क्या है कि सीधे आपको हम ले आए हैं मतलब कि आंसर राइटिंग पर, तो क्योंकि इतना समय है नहीं कि अब एक एक चीज का बेसिक आपको, यहाँ हम लोग बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं कि जितना हमें ज़रूरत है जितने से काम चल जाए, नहीं तो इकोनॉमी का तो बहुत ज़्यादा स्टडी होता है। तो उसके लिए आपको जो है, इसीलिए कम से कम इतना पढ़ाया जा रहा है कि आपको इकोनॉमी की समझ आ जाए, कल को अफसर बने और वहाँ कोई कहे कि अरे इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ है, तो आपको पता चले क्या बोल रहा है भाई, समझ ही में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। या जो भी कुछ इस तरह का बोला या हो रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, टीवी पर आ रहा है, तो एक अफसर जो है वो समझ ले कि क्या कहा जा रहा है, या आपको कोई ऑर्डर दिया जाए, तो उसी के लिए आपको बेसिक नॉलेज कम से कम इकोनॉमी का होना चाहिए, और उसी के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। कल इन्हीं सब चीज़ों को डील करना होगा, अधिकारी बनिएगा तो उसी के लिए है कि कम से कम बेसिक जो है जानकारी हमें, तो ये चीज़ें जो है, मैंने कहा था आपसे कि कई सारे इसमें टर्म आ गया है जो कि जिसका बेसिक पहले नहीं बताया गया, तो कारण है कि भाई अब क्या करिएगा, करंट से जुड़ा हुआ बहुत सारा चीज़ बहुत आ जाता है, तो जिसका कि जैसे आप कहें कि सर इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है, तो मैंने आपको इकोनॉमी समझाया कि क्या है, या इकोनॉमी, हालांकि पढ़े थे आप, ऑक्यूपेशन आप पढ़े कि ऑक्यूपेशन किसको कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं, तो मैंने बताया कि जो भी काम जो है लाइवलीहुड के लिए किया जा, तो ऑक्यूपेशन का डेफिनेशन है कि लाइवलीहुड। यहाँ अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे तो वहाँ होगा कि जो भी काम पैसे के एवज में किया जाता है, पैसे के बदले में अगर कोई काम होता है तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो उसमें एक माँ अपने बेटे के लिए खाना बनाएगी तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा, लेकिन वही औरत किसी और घर में जाके वहाँ के लोगों के लिए अगर खाना बनाती है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, क्योंकि उसके बदले उसको कुछ सैलरी, वेजेस कुछ मिलेंगे, पैसा मिलेगा। तो इस तरह से जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है देश में, उसका एक सिस्टम है, उसी सिस्टम को हम, पूरी व्यवस्था को हम उसी को कहते हैं इकोनॉमी। पूरे सिस्टम को इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी कहते हैं मतलब कोई भी काम का, टोटल काम काज जो भी पैसे के लिए हो रहा है। मतलब कि प्राइवेट और सेक्टर में, सरकारी दोनों हो जाएगा ना। हाँ, सब सब हो जाए। जैसे कि मोची हो गया, मोची की पसीना, वो भी इकोनॉमी। यस यस यस। टोटल चीज जो पैसे से काम काज पे डिपेंड है, वो सब इकोनॉमी एक्टिविटी। हाँ देखिए, आज के डेट में क्या है कि हर एक्टिविटी पैसे से जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले जो है ऐसा नहीं था। पहले कुछ ही चीज़ों में, जैसे पहले है
आप देखे होंगे होता था कि वैद्य जी हैं गाँव के, वो गए उनके यहाँ बीमारी तो पैसा नहीं लेते थे कि ठीक है बढ़ई है, बढ़ई को कह दिया जाता था कि हाँ भाई आके ये बना दो, तो आके बना देता था। उसको भी जब कोई चीज़ की ज़रूरत होती थी वो आ जाता था कि हाँ भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उसको दे दिया जाता था। तो पहले डायरेक्टली पैसे के लिए चीज़ें नहीं होती थी, एक अंडरस्टैंडिंग होता था कि जब जिसकी ज़रूरत है उसको पूरा कर दिया जाता था, बदले में वो भी दूसरे की ज़रूरत पूरा करता था। तो लेकिन अब क्या है, अब हर चीज़ पैसे पर जुड़ गई, ठीक है। तो इसीलिए आज के डेट में हर चीज़ लगभग पैसे के लिए हो गई है, और इसलिए जो है आज हर चीज़ जो है पैसे से खरीदी जा सकती है या पाई जा सकती है। तो ये कैसे रिकॉर्ड निकालना रहता है क्या? कैसे डिप्रेशन पता चलता है कम हो गया, मतलब रिकॉर्ड भाई बताए ना आपको कि आंकड़े लिए जाते हैं, हाँ जैसे जाके पूछा जाएगा, मान लीजिए बिहार का पता करना है कि बिहार में क्या चल रहा है, तो भाई आया जाएगा, जितने लोग कामकाज कर रहे थे उन सब से कुछ लोगों से जाके पूछा जाएगा, हाँ भाई आपका काम कैसा चल रहा है। कारपेंटर से पूछा जाएगा, हाँ भाई तुम्हारा काम अब कैसा चल रहा है, अभी पहले कितना का काम करते थे, कितना कमाते थे, आजकल कितना का काम मिल रहा है, तो बोलेगा सर। लॉस हो जाएगा तो डिप्रेशन हो जाएगा। हाँ बस यही है, जब डाउन हो जाएगा एक्टिविटी तो डिप्रेशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो ग्रोथ कहा जाएगा। समझ गए? तो ये टोटल ऑक्यूपेशन का ही लिखा जाता है यस आंकड़ा। यस यस। मिला के कैसे तो निकाला जाता है। उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, वही बोले ना, ऑर्गेनाइजेशन है कई सारे जो उसका रिकॉर्ड रखते हैं, उसी को इकोनॉमिक डेटा कहते हैं। वो डेटा रखते हैं, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, कितना काम हुआ आज, कितना काम हुआ, हर दिन का रिकॉर्ड होता है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो रिकॉर्ड रखती हैं। जैसे चेक किए, देखिए जैसे कि एक दुकानदार है, तो दुकानदार को क्या होता है, उसको अपना रखना होता है रिकॉर्ड कि कितना सामान खरीद बेच किया, उसको सरकार को दिखाना होता है कि हाँ भाई हम इस महीने या इस साल में इतना चीज़ खरीदे बेचे जो है कि नहीं। तो हर चीज़ का रिकॉर्ड एक तो खुद मेंटेन किया जाता है, वो रिकॉर्ड जो है सरकार के पास जाता है, सरकार को देना होता है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किए, देखिए आपको अपना जो है ये दिया जाता है, क्या बोलते हैं, आपको अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना रहता है कि इस साल मैंने इतना इतना इनकम हुआ। और जहाँ आप जैसे मान लीजिए आपका कोई एजेंसी है, आप कुछ बेचते हैं, तो आपको पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि हाँ बिल रखना पड़ता है कि इतना सामान इस साल हम बेचे, सरकार को दिखाना पड़ता है ना, कि हाँ हम इतना सामान इस साल बेचे, उस पर इतना टैक्स देंगे सरकार को। सरकार भी जानती कि अच्छा इस साल इसने इतना सामान बेचा। हर चीज़ का जो रिकॉर्ड है अपने आप मेंटेन हो रहा है जगह जगह, वो सरकार के अवेलेबल हो जाता है। बहुत से लोग पहले रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते थे, अब जो है काफ़ी टाइट हो गया, अब हर किसी को है कि अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, नहीं तो वो रिकॉर्ड में आ जाता है। अब सरकार चाहे तो ये देख सकती है कि मैंने अमेजन से इस साल कितनी चीज़ें खरीदी हैं, समझ गए, क्योंकि अमेजन उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, सरकार वो चाहे तो देख सकती है कि हाँ भाई इन्होंने कितनी चीज़ें खरीदी हैं। तो इस तरह से हर जगह हर चीज़ का, भाई जो कारपेंटर है काम करता है तो उसको भी अपना जो है कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि हाँ इस साल इतना इतना काम किए, या अगर वो कहीं किसी कंपनी से जुड़ा होगा कि तो वहाँ तो उसका हर काम का रिकॉर्ड होता है कि हाँ भाई इतना सामान बनाया, ये बनाया। तो हर जगह जहाँ भी काम काज हो रहा है वहाँ कुछ ना कुछ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और उस रिकॉर्ड को देखा जाता है, इस तरह से उसका आंकड़ा लिया जाता है और उससे कैलकुलेट किया जाता है कि इकोनॉमी किस कंडीशन में है, क्या वहाँ रिसेशन है कि वहाँ ग्रोथ है। RECESSION, रिसेशन, ये रिसेस वर्ड से बना है। रिसेस जैसे लंच ब्रेक को या ब्रेक को रिसेस कहते हैं ना, उसी से बना है, यानी जब ब्रेक आ जाता है। जैसे हम लोग क्या है काम कर रहे होते हैं, हम लोग ब्रेक लेते हैं कि एक रिसेस लेते हैं 10 मिनट का, उसके बाद कंटिन्यू करें। तो इसी तरह जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो चल रही थी और वो कुछ समय के लिए रुक जाती है, तो उसको हम रिसेशन कहते हैं। तो रिसेशन होता है कि जब काफ़ी ज़्यादा मतलब कामकाज बहुत कम हो जाता है और वो लगभग मतलब रुक सा जाता है, तो ऐसे हालत को हम कहते हैं रिसेशन। समझ गए?
तो थोड़ा सा मतलब एक ही जैसा है। डिप्रेशन जब ज्यादा हो जाता है तब हम कहते हैं रिसेशन, समझ गए? ऐसे घट रहा है तो उसको हम डिप्रेशन कहें, लेकिन जब घटते घटते बहुत ज्यादा घट गया है और इस हाल में आ गया है कि लगभग चीजें रुक सी गई हैं तो बहुत ज्यादा घटना को रिसेशन कहेंगे। हाँ, उसको रिसेशन। समझ में सर। मतलब जहां भी कामकाज था सब धीमा हो गया, पता चला जितने होटल है वहां कोई खाने नहीं जा रहा है, जितने सिनेमा हॉल है वहां कोई सिनेमा देखने नहीं जा रहा है, जितना मार्केट है वहां कोई सामान नहीं खरीदने जा रहा है, जहां मिल है वहां किसी काम काज कुछ नहीं हो रहा है कहीं भी। तो इस तरह से जब मतलब हर तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कम हो जाए, मार्केट में सामान बिकना बंद हो जाए, कस्टमर लोग मार्केट जाना बंद कर दें, ठीक है, और कोई डॉक्टर के पास कोई जा रहा है दिखाने, ना कहीं कोई काम सिनेमा हॉल कहीं ना घूमने जा रहा है, ना कोई खाने पीने बाहर जा रहा है। अब भाई क्यों जाएगा? जब पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेगा? एक बात बताइए, जब मेरे पास मान लीजिए मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं है तो मैं बाजार जाके क्या करूँगा? है, मेरे जेब में अगर पैसा नहीं है तो एक इसमें कहावत भी है ना भोजपुरी में कि पैसा न कौड़ी अब बीच बाजार दौड़ा दौड़ी, कि पैसा तो है नहीं और बाजार में दौड़ लगा रहे, इधर से उधर घूम रहे। अरे भाई क्या करिएगा बाजार में जब आपके पास खरीदने के लिए कुछ पैसा ही नहीं है, तो करिएगा क्या बाजार में? तो मेरे पास अगर मैं समझदार होऊंगा तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं किस लिए बाजार जाऊंगा? मैं जानता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बाजार में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं देगा, ना कोई कुछ करेगा मेरे लिए। तो वाई शुड आई गो टू द मार्केट, वाई शुड आई गो टू द डॉक्टर? अब मुझे बीमारी भी है तो मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास कि भाई वो मुझे देखेगा नहीं बिना पैसे के। भूख लगी हुई होगी तो मैं होटल में नहीं जाऊंगा कि भाई खिलाएगा नहीं बिना पैसे के, ठीक है? तो इसीलिए तो लोग क्यों कम कर देते हैं जाना, सामान खरीदना क्यों कम कर देते हैं? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो आखिरकार सामान बिकना क्यों कम हो जाएगा? टीवी बिक रहा था कल तक, आज क्यों नहीं कम बिकना, कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि लोगों के पास अब उतना पैसा नहीं है कि वो टीवी खरीद सके, वो बाहर खाना खा सके, डॉक्टर से इलाज करा सके। और पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि उनको काम नहीं है। काम करते रहते तो पैसा मिलता ही, जब काम ही नहीं मिल रहा है तो पैसा कहाँ से आएगा जेब में? और जब पैसा नहीं आएगा तो फिर उसको खर्च कैसे करेंगे? खर्च भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जब काम नहीं, अभी आपको बोला ना अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा? इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो क्या होगा? आपने पीछे पढ़ा कि उसमें जो है डिप्रेशन आ जाएगा, डिप्रेशन आने का डर है, ठीक है? तो और पीछे आपने पढ़ा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा। अगर पैसा कमा नहीं रहा है तो उसका इनकम कम हो जाएगा, काम नहीं मिल रहा है तो इनकम कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा। भाई कल तक जो रोज होटलों में खाता था आज तो नहीं खा पाएगा क्योंकि पैसा नहीं है। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे इकोनॉमी में डिप्रेशन आने की आशंका होगी, क्योंकि हर जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने लगेगा, रुक सा जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो क्या करेंगे बाजार जाके? और जब इस तरह से रुक जाएगा तो फिर जो है उसको कहेंगे कि डिप्रेशन हो गया, रिसेशन आ गया। तो यही यहाँ कहा जा रहा है। देखिए आगे देखते हैं इसमें कि यहाँ पे रिसेशन मतलब कि रुक जाना भी हो सकता है, मतलब धीमा हो जाना, तो थोड़ा अलग हो जाएगा मतलब। देखिए रिसेशन जब एक डिप्रेशन एक सीमा से ज्यादा हो जाता है तो उसको रिसेशन कहते हैं। तो मतलब कहेंगे रुक गया या फिर धीमा हो गया, मतलब रुक जाना अलग हो गया ना, धीमा हो जाना मतलब काम काज चल रहा लेकिन धीमा है, और रुक जाना मतलब टोटली स्टॉप। देखिए आप जब स्कूटी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं और ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे आपका स्पीड कम होता है। एक समय इतना स्पीड, जैसे आप 60 पर गाड़ी चला रहे थे, 60 पर चल रहा था, आप कहते हैं हाँ खूब तेज चल रहा हूँ, हवा से बातें कर रहा हूँ भाई। और उसके बाद क्या होता है कि आपको कोई आगे गाड़ी दिखती है कि गाड़ी कोई सामने खड़ी है तो आप क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाते हैं तो आपकी स्पीड धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। तो जब स्पीड घटना शुरू हो गई तो उसको हम बोले डिप्रेशन। और जब घटते घटते इतनी घट गई कि लगे कि अब लगभग रुक गया है, जैसे कि 10 की स्पीड पर आ गए,
5 की स्पीड पर आ गए, लगा कि जो है कि अब लगभग रुक ही गए हैं, लगभग कहने को खाली चल रहे हैं। क्या लगभग रुक गया होगा। हाँ, तो हाँ, उस समय से जब 10 के नीचे स्पीड हो जाएगा तो मान लीजिए कहा जाता है कि 10 से नीचे होगा तो उसको हम रिसेशन कह देंगे। तो अगर 10 से कम स्पीड हो गई तो उसको रिसेशन कहा जाएगा। तो मतलब कि एक रिसेशन अलग हो गया, डिप्रेशन अलग हो गया। अलग नहीं है, उसका मात्रा कम ज्यादा है। डिप्रेशन जो है घटने को कहते हैं, और जब घटते घटते बहुत कम, इतना घट जाए कि लगे कि जैसे अब रुक जाएगा, तो उसको रिसेशन कहते हैं। लेकिन कुछ ज्यादा हो गया तो हाँ, नॉर्मल है तो डिप्रेशन, बहुत ज्यादा हो गया तो रिसेशन। समझ गया। तो यही यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए, इफ पीपल आर नॉट यूज्ड एज रिसोर्सेज दे विल बिकम बर्डन ऑन द इकोनॉमी। अगर लोगों का इस्तेमाल रिसोर्सेज की तरह नहीं किया जाएगा, देखिए रिसोर्स का मतलब जिसका कोई यूज है, तो अगर कोई आदमी है तो उसका कोई तो यूज होता है, अगर वो कारपेंटर है तो उसका काम कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर बना सकता है। तो कहने का मतलब कि अगर किसी पर्सन का एज ए रिसोर्स, उसको एक रिसोर्स की तरह हम यूज नहीं करते हैं, तो क्या होगा, वो बर्डन हो जाएगा इकोनॉमी पर। भाई एक कारपेंटर है, उसको हम काम नहीं दे रहे हैं, काम नहीं दे रहे हैं, उससे हम काम नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, खाएगा पिएगा तो फिर भी बिना खाए पिए, ऐसा तो नहीं कामकाज नहीं करेगा तो बिना खाए पिए रह जाएगा, खाए काम काज नहीं करेगा तो बिना जो है और चीज़ें कुछ कुछ अपना जो आदत है उसका किए बिना रह जाएगा, उसको तो खर्च चाहिए। तो क्या होगा, वो बर्डन हो जाएगा इकोनॉमी पर, क्योंकि कमा नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं से उसको पैसा इंतजाम या तो पेरेंट्स से या जहाँ से सपोर्ट करे। तो वही कहा जा रहा है कि इफ पीपल आर नॉट यूज्ड एज रिसोर्सेज दे विल बिकम बर्डन ऑन इकोनॉमी। It is the responsibility of the economic policy of country to lessen the burden of unemployment। कहा जा रहा है कि इसीलिए ये जो जिम्मेदारी किसकी है, ये है देश के इकोनॉमिक पॉलिसी की, यानी इकोनॉमी से जुड़ी हुई जो पॉलिसी हम बनाते हैं कि क्या कैसे किया जाएगा, तो उस इकोनॉमिक पॉलिसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लेसन द बर्डन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि बेरोजगारी का बोझ जो है वो कम किया जाए। बेरोजगारी का बोझ, भाई जितने ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे उतने ज़्यादा बेरोजगारी का बोझ बढ़ जाएगा, बेरोजगारी भारी हो जाएगी। उसका बोझ कम कैसे होगा, जब बेरोजगार को रोजगार मिलने लगेगा तो उसका बोझ कमेगा। तो वही कहा जा रहा है कि ये किसकी जिम्मेदारी है, ये देश के इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसकी जिम्मेदारी है टू लेसन द बर्डन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगारी के भार को कम किया जाए, सो दैट इकोनॉमिक सिस्टम कुड बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ताकि जो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था वो जो है स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे। तो यहां देखिए, अर्थव्यवस्था हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है अपना लाइवलीहुड, हिंदी में अर्थ जो शब्द है उसका अर्थ होता है लाइवलीहुड, अपना जीविका। और अर्थव्यवस्था या अर्थ पैसे को भी कहते हैं एक सेंस में। तो अर्थव्यवस्था यानी कि जो लाइवलीहुड की व्यवस्था है, लाइवलीहुड से पूरी व्यवस्था जो बनती है या जो पैसों से पूरी व्यवस्था बनती है, उसको हम अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी कहते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक सिस्टम जो है हमारा वो स्वस्थ कब रहेगा, अभी आप पढ़े कि जब अगर बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोगों का इस्तेमाल नहीं होगा तो वो बोझ बन जाएंगे। अब एक आदमी है उस पर हमेशा एक बोझ पड़ा रहे माथा पर, तो वो हेल्दी रहेगा, बीमार हो जाएगा। एक आदमी, आप ही को मान लीजिए आपके माथा पर जो है 10 किलो का बोझ बांध दिया जाए कि जहां चलो 10 किलो बोझ लेके चलो अपने साथ, तो आप हेल्दी रहिएगा, कमजोर हो जाइएगा, बीमार हो सकते हैं। तो उसी तरह जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा तो वो क्या है, इकोनॉमी के माथे पर एक बोझ जैसा हो जाएगा। तो जब बोझ हो जाएगा तो इकोनॉमी हेल्दी रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। स्ट्रांग रह पाएगा, नहीं, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उस पर बोझ है बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा बोझ हो जाएगा, आप समझ सकते हैं बोझ का क्या मतलब होता है।
अगर एक आदमी है और उसके साथ एक बोझ अटैच हो जाए हमेशा, कि जहां जाइएगा आपके पर ऊपर एक बोझ है 20 किलो का, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे चिड़चिड़ा होकर बीमार हो जाएगा तुरंत, उतना बोझ उठाए उठाए लगातार। तो उसी तरह हमारा जो इकोनॉमी होता है वो भी बीमार हो जाता है। अगर उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन होने लगता है लगातार लंबे समय तक, तो वो बीमार हो जाता है। तो जब उसका बोझ कमेगा तो वो धीरे धीरे ठीक होता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि जो है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ कंट्री, ये देश के इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति की जिम्मेदारी है, ताकि कि वो बेरोजगारी के बोझ को कम करे। जो बेरोजगारी का बोझ पड़ा हुआ है इकोनॉमी पर, उस बोझ को कम करे, ताकि इकोनॉमी भी ठीक से सांस ले सके, हेल्दी रह सके, मजबूत रह सके। पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। हाँ, जस्ट वन। इसका यस ओके। हाँ बोलिए। इसका तो फॉर्मूला होता है कि कैसे निकालने का क्या चाहिए? क्या? ये जो इकोनॉमिक डिप्रेशन का ये जो है, इसका क्या वैल्यू कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला होता है क्या? मतलब वहाँ पे कैसे? कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए, सीधा सीधा बात है। आपकी एक दुकान है, आप अपना दुकान का रिकॉर्ड मेंटेन, अगर दुकान आप चलाते हैं तो आप दुकान का रिकॉर्ड रखते ना है कि हाँ भाई इस महीने कितना मेरा सेल हुआ, इस महीना कितना सेल हुआ। तो जैसे जैसे आपका सेल घटता जाए, आप देखिएगा, अरे पिछले महीना तो मेरा 10,000 का सेल हुआ था, इस महीना मेरा 5,000 का सेल हुआ, तो इस आप कहिए कि अरे मेरा तो घट गया है सेल, तो डिप्रेशन है। बस, तो हर जगह देखा जाता है कि कहाँ घटा है, डिक्रीज हुआ है। ज्यादा घाटा होगा तो मान लीजिए कि 140 एक जगह पे आदमी है, उसमें से आधा आधा से ज्यादा के घाटा होगा तो वो डिप्रेशन स्थिति में वो आएगा। डिप्रेशन हो जाएगा। आधा से ज्यादा तो आधा से ज्यादा होना चाहिए, यही ना? आधा से ज्यादा का बात नहीं है, टोटल का वैल्यू देखा जाता है। टोटल का वैल्यू मतलब, देखिए बात है कि आप आधा का क्यों देखेंगे, देखा जाता है, सबका देखा जाता है, टोटल वैल्यू देखा जाता है। जैसे 10 लोग मिलके, कहीं 10 लोग हैं तो 10 लोगों का टोटल ऐड करके देखा जाएगा। जैसे पिछले महीने 10 लोग का इनकम कितना था या सेल कितना था, और इस महीने का सेल कितना है, अगर वो सबका टोटल कम हो जाएगा तो कहेंगे डिप्रेशन है भाई। समझ गया सब करिए। सीधा बात है। सबका वैल्यू लेके देखा जाता है कि कितना हाँ कितना। भाई, 10 लोग हैं, मान लीजिए 10 दुकानदार हैं, और 10 मिलके टोटल पिछला महीना में मान लीजिए 5 लाख रुपया का सेल किए थे, और इस महीने का लिया जा रहा है तो मान लीजिए सब 4 ही लाख का सेल किए, तो कहा जाए कि भाई चूंकि 5 लाख से 4 लाख घट गया है तो डिप्रेशन है वो दुकानदार का। क्लियर हुआ? टोटल वैल्यू देखा जाता है। अगर टोटल वैल्यू बढ़ता है तो उसको ग्रोथ कहते हैं, घटता है तो डिप्रेशन कहते हैं। बहुत ज्यादा घट जाता है तो उसको रिसेशन कहने लगता है। एक आदमी का इस महीने का और नेक्स्ट महीना, पिछले महीने का और इस महीने का देखा जाएगा कि कितना वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज किया है, उसके बाद से कहेंगे। यस यस। उसी तरह मैंने कहा कि जैसे अगर देश की बात की जा रही है, तो देश में जितने भी लोग कामकाज कर रहे हैं,
उन सब के कामकाज का जो भी वैल्यू है वो ऐड किया जाता है, वो उसी को आप जीडीपी कहते हैं, है कि नहीं। तो जीडीपी अगर देश का बढ़ता है तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी अगर घटता है तो हम कहते हैं कि डिप्रेशन है। सीधे जीडीपी पर होता है। हाँ, देखिए जीडीपी वही तरीका है, जीडीपी ही वो तरीका है कि व्हाट इज इट, जीडीपी इट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। बस, तो वो जो वैल्यू है जो जीडीपी है, अगर वो बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, अगर घटेगा तो हम कहेंगे इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, हाँ। तो देखिए अभी तो आप देख ही सकते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा, देखिए अभी लोग रोज झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, झूठा डेटा आ रहा है यहाँ जबरदस्ती लोगों को ये करने के लिए कि यहाँ इतना बढ़ रहा है। आप नहीं ध्यान, हिंदू वगैरह का बिजनेस में देखिएगा न्यूज़ में तो आते रहता है कि अच्छा इसका इतना प्रोडक्शन बढ़ गया है, इसका इतना प्रोडक्शन बढ़ गया है, दिखाने के लिए कि हमारा ग्रोथ हो रहा है, जबकि वास्तव में हम अभी गहरे डिप्रेशन में हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए ड्यू टू इनसफिशिएंट कैपिटल the use of natural resources is not properly done in economic system, that is a basic reason of unemployment। कहा जा रहा है कि क्या होता है कि जब कहीं डिप्रेशन होता है, कामकाज धीमा पड़ जाता है या कम हो जाता है, तो क्या होता है, लोगों के पास जो है पैसा नहीं रहेगा। अभी आपको बताया कि लोग मार्केट क्यों जाएंगे, जब उनकी जेब में पैसा नहीं रहेगा। और जेब में पैसा क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है। तो जब पैसा नहीं रहेगा तो क्या रिसोर्सेज को हम यूज कर पाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को। भाई जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कोई फैक्ट्री खोलेगा, कोई दुकान खोलेगा, कोई होटल खोलेगा, नहीं खोलेगा। जब दुकान होटल वगैरह नहीं खोलेगा तो नेचुरल रिसोर्सेज का वहां यूज हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि देखिए अगर कोई होटल खोलेगा तो उसके लिए जो है मटेरियल वगैरह सब जो है ला के कंस्ट्रक्शन का एक होटल बनाएगा, वहाँ सब आदमी को नौकरी पर रखेगा, खाना पीना वहाँ बनेगा, तो उससे होटल चलना शुरू हो जाएगा, वहाँ बहुत सारा और चीज़ फैसिलिटी क्रिएट किया जाएगा। तो यानी कि बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो रहा है उस होटल में। और अब होटल बन ही नहीं पाएगा तो कैसे यूज होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, और क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि पैसा नहीं है होटल बनाने के लिए किसी के पास। क्यों नहीं है पैसा, क्योंकि काम नहीं है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो उससे रिसोर्सेज का भी यूज ठीक से नहीं हो पाता है, नेचुरल रिसोर्सेज का, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो क्या रिसोर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो इसे इम्प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो यहां देखिए ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, इसकी समरी है, समरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। समरी में आपको आइडिया मिल जाना चाहिए, समरी को कोशिश कीजिएगा लिख लेने का भी। शॉर्ट में आपको पूरा चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो बात लिखा जाएगा इसमें, तो समरी को कोशिश करिएगा हमेशा, इसीलिए आपको दिया जा रहा है समरी करके। देखिए समरी क्या है, पूरे चैप्टर का कम वर्ड्स में आपको उसका दे दिया गया है सारांश। तो समरी को भी लिखने से होता है कि शॉर्ट कम वर्ड्स में आंसर लिखने का, हमें अगर किसी टॉपिक पर कम वर्ड्स में लिखना है तो वो मिल जाएगा आपको समरी से। तो समरी कोशिश कीजिएगा लिखने का, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, और जो क्वेश्चंस है उसको लिख के दिखाइएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, हर तरह का ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स है, टिक मार्क है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, प्रोजेक्ट वर्क है। तो सबको करके देखिएगा, और कल जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है लेंगे, भेज दे रहे हैं।
हाँ भेज प्रिंट दीजिए। आउट निकलवाना हुआ है। ठीक है, भेज देते हैं अभी आपको।